आपकी असीम कृपाया उपस्थित सभी जनों पर सदैव बनी रहे। And now, how can we forget our beautiful Indian traditional Atithi Devo Bhava, which teaches us that a guest is like God? Absolutely, and to honor of this tradition, let's dive into the melodious world of music with our welcome song presented by our little munchkins. So, dear audience, let's welcome them with a thunderous round of applause. इंस्ट्रूमेंट्स, एक्टिंग, ड्रामा, ओरेटरी स्किल्स, सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। और आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि हर परफॉर्मेंस के बाद इट्स योर प्रोग्राम, बच्चों का हौसला अफजाई करें बहुत तेज, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस उससे ही बढ़ेगा। यू हैव टू वर्क इट आउट, क्योंकि अपने बच्चों को जब तक आप स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर नहीं करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि वो इतने बड़े मंच और प्रोग्राम पे हैं। तो हर प्रोग्राम के बाद सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि आप उनका हौसला अफजाई करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। Dancers who truly made us feel like we were floating in a world of magic. And now, dear audience, it's time for a performance that will touch your hearts. This act is not just about dance, it's about breaking barriers and embarrassing inclusivity. Our special children have worked tirelessly to bring this performance to life, pouring their passion and dedication into every move. So let's welcome them with all our love and appreciation. What an inspiring and heartwarming performance! Let's give another great loud applause for these talented performers who have shown true meaning of dedication and joy. Yes, strength lies in its fields and farmlands, and who are the true warriors of our nation? Our farmers. जब तक किसान खेत में मेहनत करता है, तब तक देश का हर घर खुशहाल रहता है. So today we celebrate our hardworking hands that feed our nation. So dear audience, let's welcome our respected farmers on the stage with gratitude and applause. Now it's time to get ready for school. Wait, what? We are already in school. Oh, you fool! I am talking about the next performance. You really scared me. I thought that we would have school at night too. Don't worry, in fact, let's take our audience on an exciting journey to other bright continent, Africa. So let's welcome our incredible dancers as they bring to life the rhythm, energy and soul of Africa. That was a reluctant performance. And now let's keep the energy high as we move to our next exciting celebration of culture and tradition. Our little toddlers are ready to take us on a colorful journey to the heart of Gujarat with their traditional Gujarati dance. So audience, sit back, enjoy and welcome our little stars with your loudest applause. सभी को नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं रवाना की न्यूज़। बड़ी खुशखबरी, डीबीके इंटरनेशनल स्कूल के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने आज बड़ी धूम मचाई थी। आज एनुअल फंक्शन किया गया था स्कूल के अंदर। मेरे साथ मैम प्रिया कुकरेजा जी हैं, जिन्होंने इस स्कूल को संवारा ही नहीं है, बड़ा अच्छे संस्कारों, और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ, चाहे एक्टिविटी कोई बात करूँ, तो सबसे पूरे नरवाना में नंबर 1 कर दिया। मैम सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको कि छोटे छोटे बच्चों ने आज वो करके दिखाया जो बड़े भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर। और या हम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, बस सोचना होता है। वैसे ही हम बच्चों से जो चाहते हैं कि हम बच्चे, कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि ये कुछ चीज़ें होती है एग्री लगा लो या कम्युनिकेशन स्किल में हम सोचते हैं कि छोटे बच्चों पे वर्क नहीं हो सकता है, बड़े बच्चे इजीली सीख जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को सिखाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनकी इतनी वो पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जैसा हम इनपुट डालते हैं वैसा एज इट इज़ वो हमें कॉपी पेस्ट करके दिखा देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की हैबिट होती है कॉपी करने की, नकल करने की। वो नकल में हमारा टारगेट अचीव हो जाता है और उनकी जो रूटीन है, रूट टू फ्रूट का जो सफ़र है वो सफल हो जाता है। उनकी रूटीन में ही अगर फील कर दिया जाए कि बेटा यू विल हैव टू कम्युनिकेट एज लाइक दैट, जैसे मदर एक एप्पल ही बताती है कि दिस इज़ अ एप्पल, उसको
तो शायद लाइफ टाइम अगर उसने सुना ही नहीं कि इसको सेव बोलते हैं तो वो नहीं सीखेगा। इसलिए जो सुनाना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वही हम बच्चों को सुनाते हैं पहले, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, एट द लास्ट वी स्टार्ट राइटिंग। तो शायद उसी का रिजल्ट है ये, बच्चे अच्छे स्पीकर बन रहे हैं। क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है कि हमारे बैग में क्या है, इट डजंट मैटर, हमारे माइंड में क्या है, इट मैटर्स। तो द सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू डू। आपके छोटे छोटे बच्चे एंकरिंग कर रहे थे, यस, उसकी बस देखो स्टार्ट किया है, बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी, सभी की मेहनत है। एक छोटा सा प्रयास था हमारी तरफ से, थोड़े से एफर्ट से कि इन बच्चों से ही एंकरिंग कराई जाए ताकि उनको बड़े होने पर भी उनको स्टेज फोबिया ना रहे, वो वैसे कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि बच्चे जो है रेडीमेड सेंटेंसेस से ज़्यादा सीखते हैं, ग्रामर से कभी इंग्लिश नहीं सीखी जाती। छोटा सा प्रयास था। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड गिव मी चांस टू एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ थिंग्स कि हमारे बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। मैं दूसरे स्कूलों से हमारा हर चीज़ में अलग है। अगर मैं शिक्षा संस्कार की बात करूँ वो भी आप दिखा रहे हैं, एंकरिंग की बात करूँ वो भी आप बच्चे से करवा रहे हैं, अगर टाइमिंग की बात करूँ वो भी टाइम दूसरे से अलग है। क्या पर्पज है, क्या मतलब क्या कुछ अलग क्यों करवा रहे हैं, क्यों क्या काम है? छोटी बच्चों की तरफ ना ये अननोटिस अनटच रहते हैं। जैसे एक स्प्राउटेड पल्सेस होती हैं, उनका टाइम लगता है पेड़ बनने में। हमारा पेड़ पे तो टारगेट होता है बट रूटीन की तरफ नहीं होता। और अगर हम बात करें कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो, हमारा फोकस रहता है बोर्ड की क्लासेस की तरफ। वो छोटे बच्चे अननोटिस और अनटच रह जाते हैं। हमारे पास अभी बोर्ड की क्लासेस नहीं है और कम बच्चे हैं हर क्लास में, 20 to 25 की स्ट्रेंथ है हर क्लास में। कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, इसीलिए शायद हम हर बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस कर पाते हैं। और यहाँ पर हर बच्चा स्टेज पे था, ईच एंड एवरी चाइल्ड वाज ऑन द स्टेज। तो एक छोटा सा प्रयास था कि हर बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। मैम जैसे कितने साल के बच्चे थे ये? और हमारे यहाँ पर 3 ईयर्स से लेकर 8 ईयर्स के बच्चे हैं बस। कोई हो सकता है 8.5 ईयर्स का या 9 ईयर्स का, इससे ऊपर तो कोई बच्चा नहीं है अभी। तो उससे इवन कि 2.5 ईयर्स के भी थे 2 बच्चे जो डांस करके लिए। उनको भी आए हुए 15 डेज ही हुए थे। हमने 15 डेज में उस बच्चे को स्टेज पे चढ़ाया। बच्चों ने प्रस्तुति कितनी प्रस्तुति थी और क्या लगता है आपको कौन सी प्रस्तुति ने क्या संदेश दिया? देखो हर प्रस्तुति अपने आप में बहुत बड़ी थी। हर बच्चे ने अपना 100% दिया, चाहे वो टीचर्स के एफर्ट्स कह सकते हैं और पेरेंट्स का सपोर्ट है, बच्चों की भी साथ में टायरलेसली दे स्टार्टेड वर्क। 15 डेज की हमारी प्रिपरेशन थी, 15 to 20 डेज वी कैन से। उसमें मैं किसी को भी ज़्यादा और कम नहीं बोलूँगी। चाहे हमारा रामायणा था, वन ऑफ द बेस्ट इवेंट दैट वाज। रामायणा में एक एक करेक्टर को एक्टिंग करवाना, डायलॉग्स, एवरीथिंग वाज। तो हर बच्चे ने उस करेक्टर में जाके एफर्ट्स किए। अदरवाइज हम भी हो शायद उस करेक्टर में वैसी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। बच्चे सभी ने अपना ट्राई किया। ऑटिज्म के ऊपर था कि हर बच्चा स्पेशल है, वीकर और फास्ट और स्लो कोई नहीं होता है, सभी बच्चे सेम होते हैं। अगर हम कोशिश, शिक्षक एक बच्चे जैसा होना चाहिए, वो बच्चे के लेवल तक सोचे, बच्चों के जैसे सोचे, ताकि बच्चा उसको अपना फ्रेंड मान के उसके जैसे उसका खेल मस्ती सब, क्योंकि खेल खेल के ज़्यादा अच्छे से सीखा जाता है। हम भी अपने चैप्टर भूल जाते हैं बट गेम्स कभी नहीं भूलते। पुराने गेम्स, स्टेपू, छोटे छोटे अलग अलग गेम्स हम लोग खेलते थे, अभी तक याद है, बट हम अपने चैप्टर्स भूल चुके हैं। इन बच्चों में स्टडी जो है प्लेइंग मेथड से कराई जाती है और टीचर भी बच्चा बन के उनके बीच में रहता है, वो दोनों इंजॉय करते हैं। ना वो टीचर के लिए बोरिंग है और ना ही बच्चे के लिए बोरिंग है। इट वॉज माई एफर्ट और हमेशा करती रहूँगी कि बड़ी क्लासेस तक हमारा जैसे टारगेट है कि 10 तक लेके जाना है स्कूल को। इस साल हमारी 5th स्टार्ट हो रही है, ईयर टू ईयर एक एक क्लास बढ़ती चली जाएगी, बल्कि कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होने वाली है, हमारे फर्स्ट फ्लोर बनने वाला है। तो कोशिश है कि हर बच्चा हमारा ही आगे बढ़े, हमारा यानी कि हम जो रूटीन कर रहे हैं, बेस दे रहे हैं, वो सीनियर क्लासेस तक ICSE बोर्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे, ICSE के बोर्ड के साथ कम्पीट कर पाए हम। कोशिश है छोटी सी हमारी से। मैम एडमिशन का भी टाइम है, यस सर, और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करेंगे पेरेंट्स से? यस।
मैं चाहूँगी देखो एडमिशन करवाना या ना करवाना सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को कोई स्कूल पसंद है, किसी को कोई स्कूल। जो एक्चुअल में पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा खुश होकर स्कूल में आए, हमारे स्कूल की ये यूएसपी है कि कोई बच्चा रोकता हुआ नहीं आता, वो खुश होकर आते क्योंकि उसका इंटरेस्ट बन जाता है, वो इंजॉय करता है। मैं हर पेरेंट्स को चाहूँगी जो हर पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करता है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश होके जाए, पढ़ाई को बर्डन ना ले, खेल खेल के में ही सीख जाए, तो एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। उसके बाद उनकी खुद की चॉइस होती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।